और फिर बस एक्सपेरिमेंट किया एंड एज आई टोल्ड यू देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजन्स एंड डिजास्टर्स, लेकिन फिर फाइनली आई गॉट टू समवेयर कि अच्छा ये अच्छी चीज़ बन गई है, इसको पेज पे लगाते हैं आप। और फिर बस उधर से ही शुरू हुआ, सेल्स होनी शुरू हुई, तो फिर लगा कि आई एम डूइंग समथिंग, बस। Hello, everybody. Welcome back to another episode of Kabil Kahani, where it is my job to bring out the stories of the founders in Pakistan who are making in Pakistan, who are contributing in making the new Pakistan. And all through the podcast, हमारा हमेशा ये गोल होता है कि we understand their hero's journey, we understand their passion, we understand कि उन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे grow किया. What are some of the lessons, the mindsets, the failures, maybe the successes that we can either learn from or we can celebrate with them? And with that, we have a very young founder. I think probably the youngest founder. We have seen pehle big fat roles. Fahad was one of the youngest founders, but I think we have the youngest founder in the Kabil Club now, and her name is Nuran. Have I pronounced it correct, Nuran? Yes, you did. It's a beautiful name, Nuran, and she runs Dinara. इन्होंने दिनारा स्टार्ट किया था in her O levels, which is 5 years ago. So she was just barely in class, grade 10. From then onwards, it has built into a very, very go-to place for home decor. Her Instagram presence is absolutely beautiful. Her branding, her design, her quality, all that stuff. And वो मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे वो बता रही होंगी, तो as always, I will share and show her Instagram as well, where you can purchase her products, become part of her journey, so on and so forth. But let's first, all of us, welcome Nuran. So Nuran, welcome to Kabil Kahani. Thank you so much, Vikas. नुरान, आपकी जर्नी के अंदर एक जो हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि ओ लेवल्स ग्रेड 10, what was going on at that time? Was everybody around you or some of your friends around you were also doing something like this, that or you were that black swan misfit in the place and you're like मुझे सिर्फ 4 5 8 10 12 सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करना, मुझे कुछ और भी करना है? इफ यू टेक अस बैक टू दैट टाइम, क्या चल रहा था उस वक्त लाइफ में? I'd go with the black swan case. कोई भी नहीं कर रहा था, और सेकेंडली it was the corona time, the quarantine was going on, और फिर घर पे थे हम लोग सारे, and it felt like कि I should do something. और I didn't start with Dinara, I started with another brand. I used to make scrunchies, the सिल्क की कपड़े की होती हैं वो स्क्रंचीज, हाथ में पहनते हैं, ईशा वुड नो। तो आई यूज टू मेक देम माई सेल्फ। मुझे अभी तक याद है, मैंने दराज से एक 2500 की अपने पैसे इन्वेस्ट करके आई ऑर्डर्ड अ स्विंग मशीन, और उसके बाद मैंने थ्रेड्स ऑर्डर किए एंड एवरीथिंग मटेरियल. Yes, the material was free because my mother used to run a boutique, so I used to take her all the raw material from her, and then I ordered a sewing machine. और मुझे अभी तक याद है, सुबह जैसे ही I used to do my breakfast, I used to sit on the dining table with my little इतनी सी मशीन थी वो, and I used to sew the scrunchies with hand. और फिर वहाँ से शुरू किया, और बस थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हो गए, एंड इट फेल्ट लाइक आई एम अचीविंग समथिंग. सो बस दिनारा का हमने बहुत बाद में नाम दिनारा रखा है. इट यूज्ड टू बी scrunchies.pk, then it used to be cherry blossom and all the weird names, efflorescence, and then finally I suggested okay, we should go with one name, and then Dinara happened. Yeah, that's beautiful. I'd love to. Pehle to I would say that I would also know about scrunchies because Isha and I got equal length of hair. So this is my work as well these days, to source out the best of the scrunchies and ponies to keep my hair tight. But I want to know कि दिनारा का मतलब क्या है for everybody. अच्छा, देयर इज नो सच, मतलब बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग नहीं है. जस्ट इट कम्स फ्रॉम एन अरबिक वर्ड, आई गेस, दिनार, व्हिच मींस एक्सपेंसिव. Right. Very Pinteresty name I found from Pinterest. Zabardast. Let me show everybody who's watching on YouTube as well, guys. This is Dinara, dinara.pk. You can see 28.1K. And let's see all the things that she is selling. She has
By the way, now this is also a good time to introduce it, that everything is handmade by them. She, her co-founder, and a team they have done. So everything is 100% Pakistan made. The candles, the trays, and we'll ask her all the things. So right now, Nuran, if you have to tell everybody, कौन से 4, 5 या 8, 10 products हैं in the line of Dinara, and which came first? Then how was the journey of adding other in the line as well? So I remembered when I was in my A levels. जब A levels में थी तब मैंने सोचा कि सिर्फ स्क्रंचीज पे नहीं रहते, इसको एक्सपैंड करते हैं. सो आई रिमेम्बर आई वाज सो स्मॉल कि मेरे पास इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी. सो आई यूज माय ईदी ऑन मोल्ड्स. तो मैंने सबसे पहले बबल कैंडल्स का मोल्ड मंगवाए थे और आई स्टार्टेड विद बबल कैंडल्स एंड देन oval trays. Bubble candle and oval trays were the first things I started with. So it And started with. uh, uh, ये जब as a young person you're thinking of के bubble trees या bubble trees या candle bubble candle sorry क्या था Bubble candles. bubble candles and trays कौन सी Oval trays. oval trays. तो इन दोनों का ये even this idea के मोल्ड्स मंगवाने होते हैं फिर बनाना होता है सिर्फ व्हाइट सीमेंट से बनते हैं, ये सारा इसकी लर्निंग कैसे आई? अच्छा, I used to use a lot of Pinterest. I am a Pinterest person. So वहाँ से बस वीडियोस देख देख के मुझे आइडियाज आते थे. ऑल्सो आई एम वेरी इनटू आर्टिस्टिक थिंग्स. मुझे बचपन से ना आर्ट का शौक था. तो छोटी छोटी चीज़ें बस देख देख के और अच्छा ऐसे बनाते हैं. फिर आई एक्सपेरिमेंटेड. मुझे अभी तक याद है मैंने आग भी लगा दी थी एक बार घर में when I was making What candles for the happened? first time. अच्छा, पैराफिन वैक्स यूज करी थी मैं एंड इट गॉट सो हीटेड अप एंड आई डिडंट नो कि इट वुड कैच फायर. और नॉर्मल इंसान क्या ही सोचता है कि आग लग गई है तो पानी फेंकता है. आई डिडंट नो पैराफिन वैक्स हैड पेट्रोल इन इट एंड इट जस्ट एक्सप्लोडेड. तो इट वाज अ huge disaster. I Damn, didn't make any candles for 1 week. damn. यार if we take a step back and थोड़ा सा और मैक्रो पे चलते हैं, I am seeing के in your O levels you are having a lot of this entrepreneurial gene inside you कि कुछ तो करना है. कोविड भी चल रहा है, स्क्रंची से भी स्टार्ट हो रहा है. Can we trace back to this gene itself कि ये क्यों इतनी ज्यादा आग आ रही है which most other people don't have in O levels? क्या ऐसा चल रहा था लाइफ में या कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही थी? I think I got that from my mother because she was running a home based boutique. उन्होंने खुद ही अपने टेलर्स वगैरह घर में रखे हुए थे and she was organizing a whole woman led business by herself. तो उनसे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन आई थी. उसके अलावा आई गॉट सम ऑफ दैट फ्रॉम माय वेरी क्लोज फ्रेंड. तो उसने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि वी शुड डू समथिंग. ही एंड आई आर वेरी सिमिलर इन द इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस थिंग. कि पैसा कमाना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है. बेशक बेशक मतलब बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग आवरसेल्व्स. और बस वहाँ से मोटिवेशन मिली एंड वी स्टार्टेड छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बिजनेसेस और फिर बस ये दिनारा हैपेंड. Were you able to find your community within your social circle or school circle as well कि ये करने के लिए you felt like कि अलग ही तरह दिमाग चल रहा है and I would probably be making my own journey and इस पे ज़्यादा लोगों को नहीं समझ आएगी? Or was it the other way around where friends wanted to jump in on the bandwagon as well कि यार चलो मिलके करते हैं? नहीं, आई डिडंट हैव मेनी फ्रेंड्स लाइक दैट क्योंकि उस टाइम ओ लेवल्स और ए लेवल्स इज अ वेरी डिफिकल्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ्स कि आप सब पढ़ाई में लगे हुए होते हो. और मेरा यही मानना था कि ग्रेड्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. मतलब ए स्टार्स और एस बस पास हो जाओ काफ़ी है. तो वो वाला सीन था. तो उसके बाद बस साथ साथ बिजनेसेस यही फोकस होता था कि पेपर आएंगे तो पढ़ लेंगे और लेकिन बिजनेस करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट.
इस Yeah, तरह का that's so फ्रेंड्स wonderful. वगैरह का कोई सर्कल नहीं था। जो माय फ्रेंड्स एंड आई आर, मतलब जो जितनी भी क्लास फेलोज वगैरह थे, दे वर ऑल इनटू द स्टडीज एंड आई वाज कंप्लीटली अपार्ट। That's wonderful. So let's get into वही जो आप बता रही थी कि सबसे पहले बबल कैंडल्स एंड ओवल ट्रेस के लिए मोल्ड मंगवाए. So let's get into that phase के so now you kind of figured out कि अगर मैं इनके मोल्ड्स मंगवा लूं, फिर रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके बनाऊंगी कैसे, और फिर क्या बनेगा. वो what was that first week or the first days like? I remember I used to shop a lot online from Daraz specially और अली एक्सप्रेस वगैरह इधर से। तो आपको सारा कुछ वहाँ से इजीली ना दराज से मिल जाता था तब। तो फिर दराज से एक्सप्लोर करना शुरू किया मैंने, ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये मंगवा लेते हैं। और फिर बस एक्सपेरिमेंट किया। एंड एज आई टोल्ड यू देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजन्स एंड डिजास्टर्स, लेकिन फिर फाइनली आई गॉट टू समवेयर कि अच्छा ये अच्छी चीज़ बन गई है, इसको पेज पे लगाते हैं आप। और फिर बस उधर से ही शुरू हुआ, सेल्स होनी शुरू हुई, तो फिर लगा कि आई एम डूइंग समथिंग, बस। हाँ, एक्चुअली दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जो भी पहले कैंडल्स आती हैं या ट्रेज आती हैं, तो ये पहले कितने प्रोडक्ट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ बैच, 2 थे, 10 थे, 20 थे, और हाउ डज द फर्स्ट सेल, द फर्स्ट वन और द फर्स्ट 10 सेल्स केम? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई विल आंसर। एक एक मोल्ड मंगवाया था मैंने, बिकॉज आई डिडंट हैव मच ईदी, हमारी ईदियाँ इतनी नहीं जमा होती थी। तो आई गेस आई हैड ओनली 3000 रुपीज। एक एक मोल्ड मंगवाया, ऑर्डर एक एक चीज़ बना के बस आई स्टार्टेड इट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से सेल आती थी, फर्स्ट टेन ऑर्डर्स। मैंने उससे पहले जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्क्रंचीज वगैरह मैं करी थी, तो उसके तो वो तो फर्स्ट टाइम था, तो उसके तो फर्स्ट 10 ऑर्डर्स वर लाइक अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी कि पता नहीं मैंने क्या ही अचीव कर लिया। आई रिमेम्बर आई व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट ऑर्डर्स ऑफ स्क्रंचीज, आई मतलब पूरे घर में भाग रही थी, मम्मा पापा ऑर्डर आए। that was something big for me at that time. Yeah, I mean that is wonderful actually. वो बड़ी बड़ा बड़ा when a random person who you have never met has actually decided to pay you for what you're making, and it's a beautiful Yes. feeling. And आपको पता है ये हर टाइम पे लाइफ के अंदर, no matter what age or what stage in life you are, आपने घर से जब आप फूड पांडा कुछ लोग शुरू करते हैं, होम शेफ में वो एक सैंडविच का भी जब पहला ऑर्डर आता है ना, या Exactly. इट्स अ फीलिंग I ऑफ know इट्स that ओन. feeling. या Yes. कैसे फिर आप, चलो इसी पे आते हैं, स्कंचीज वाले पे. जब फर्स्ट ऑर्डर आया, फिर कैसे ऐसे दौर, एक तो एक्साइटमेंट हुई, उसके बाद अब डिलीवर भी करना है ऑर्डर, अब उनको उनसे कैश भी लेना है, फिर उनसे पूछना भी है कि कैसा लगा. तो ये क्या मेमोरीज हैं इसकी, हाउ डिड यू गो अबाउट दिस? क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था इस बारे में सब कुछ, तो आई डिस्पैच्ड इट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। अच्छा, आई फर्स्ट लिव्ड इन सरगोदा व्हेन आई स्टार्टेड दिस। हम ठीक है. अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, वी आर फ्रॉम सरगोदा, फ्रॉम द ठीक है. बैकग्राउंड। सो आई लिव देयर फॉर आई गेस 10 to 15 years। वहाँ पे हम सरगोदा रहे हैं, तो वहीं पोस्ट ऑफिस से सारा कुछ भिजवाती थी। एंड आई रिमेम्बर कि उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड था कि वो जब ऑर्डर आप वहाँ पे लेके जाते थे, यू हैड टू फिल अ होल फॉर्म, एड्रेस, नंबर, फिर नीचे साइन एंड एवरीथिंग। और फिर वो आपके घर आके जो जिस तरह भी कस्टमर ने पैसे दिए हैं, बेशक वो 10 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, इस तरह 10-10 के हैं, 20-20 के हैं, दे यूज टू गिव यू बाय हैंड। तो वो आई रिमेम्बर दैट फीलिंग कि जब वो पोस्ट ऑफिस वाले अंकल आते थे एंड ही यूज टू हैव 50 के नोट, 100 के नोट, 1000 के नोट, और फिर वो दे के जाते थे। और फिर आई यूज टू हैव अ मनी बॉक्स, मैं उसमें डाल देती थी सारा कुछ। तो आई यूज टू बी मतलब पैसे सेव करने हैं, खर्च नहीं करने हैं, दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड इफ यू हैव टू टेल पीपल कि अब आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस ऑफ पोस्ट ऑफिस मनी सेव नोट से अब सबसे एफिशिएंट सिस्टम क्या बन गया है? अब जैसे अगर एक और ऑर्डर आए, इसी तरह कैंडल का ऑर्डर आए, इसी तरह इंस्टाग्राम से आए, बाय मैसेज आए, तो अब कैसे उनको एफिशिएंटली पहुंचेगा और आपको कैसे ट्रांजैक्शन होगी? अब तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, वो सबसे पहले जाके अपना कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट खुलवाएं कोरियर कंपनीज के साथ। देयर इज ब्लू एक्स, देयर इज पोस्ट एक्स, लेपर्ड्स, टीसीएस का भी है। आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है,
कोई आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी, यू जस्ट हैव टू यस, अब गवर्नमेंट की वजह से यू हैव टू गेट योर बिजनेस रजिस्टर्ड नाउ, तो वो आपको कराना पड़ेगा एंड देन दे विल जस्ट ओपन योर कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, और बस आपको एक पोर्टल दे देंगे विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपने अपने लैपटॉप पे खोलना है, आपने वहाँ से ऑर्डर्स बुक करने हैं, स्लिप्स प्रिंटर से निकालनी है, ऑर्डर खुद ही पैक करके लगाएंगे आप, प्रिंटिंग पेपर उसके ऑर्डर पे खुद ही, और दे विल पिक अप द पार्सल्स फ्रॉम योर होम एंड इट्स सो कन्वीनियंट। यार वाओ, टू बी ऑनेस्ट नूरान, ये लोगों को नहीं पता दिस यू हैव डन, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है ना कि पाकिस्तान में इस वक्त इफ यू आर बेसिकली एडिंग द डिटेल्स इन एन ऑनलाइन पोर्टल प्रिंटिंग ऑन देयर ओन, somebody will come to your house to pick up the order यस, and take it to the final customer। और इसके बीच में फिर आप वो कैश ऑन डिलीवरी के बाद ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? कैश ऑन डिलीवरी के बाद कोई आपने ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करनी, हर पार्सल के ऊपर आप 250 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस रखते हैं जिस तरह बिजनेसेस के होते हैं, तो जब वो पार्सल डिलीवर कर देते हैं कस्टमर्स को और वो कैश ऑन डिलीवरी पे होता है, तो वो आपके अकाउंट में जब मंथली बेसिस पे भी पेमेंट्स आती हैं, 15 डे साइकिल पे होता है, 7 डे साइकिल, 3 डे साइकिल, तो वो उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं वो लोग, और जो उनका शेयर होता है 250 रुपीज वो खुद ही ऑटोमेटिकली कर देते हैं, सो इनडायरेक्टली यू आर नॉट गिविंग इवन अ पेनी टू द कोरियर सर्विसेज। Yeah, that's wonderful, and you're able to basically charge delivery to the end customer क्योंकि वो उसकी प्राइस यस, के अंदर ही आ गया है। और कस्टमर बाकी एंड अमंग ऑल द कोरियर कंपनीज जो आपने बताई हैं इन योर एक्सपीरियंस, आप अगर इसको 1 2 3 पे रैंक करो तो सबसे ज्यादा आप क्या प्रेफर करती हो? व्हाट शुड बी यूज्ड? the courier companies in my case have been so problematic क्योंकि हमारे फ्रेजाइल सारे आइटम्स हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीट करते हैं पार्सल्स को। इफ एनी ऑफ माय कस्टमर्स वुड सी दिस पॉडकास्ट, दे वुड एग्री विद मी कि भाई दिनारा की तरफ से काफ़ी ये मतलब हमें भी इशू फेस करना पड़ता है क्योंकि कोरियर कंपनीज ही इतनी ज़्यादा यहाँ पे, मैं क्या कहूँ, खराब है, क्योंकि ये लोग पार्सल्स बहुत ज़्यादा उठा के फेंकते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, और कस्टमर्स को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए भी कि इसमें वो कभी कभी कस्टमर्स हमें ब्लेम करते हैं कि आपने टूटी हुई चीज़ भेजी, आपने पैक ही इस तरह की है। अगर हम एक चीज़ में इतनी मेहनत लगा रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, हम आपको टूटी हुई चीज़ क्यों भेजेंगे? और लेकिन उसी के लिए ये जो हमारे पेज पे रिप्लेसमेंट और रिफंड पॉलिसी है वो हमने लगाई हुई है कि वी आर हेयर टू अकोमोडेट यू। और कोरियर सर्विसेज मैं यही कहूँगी कि अभी तक ब्लू एक्स अच्छी है, पोस्टेक्स वाले बहुत थोड़ा सा खराब करते हैं काम, लेकिन देयर पेमेंट साइकिल एंड देयर डिलीवरी सिस्टम इज गुड इफ यू आर नॉट सेलिंग अ फ्रेजाइल प्रोडक्ट। उसके अलावा लेपर्ड्स भी अच्छा है। लेपर्ड्स भी ठीक ठाक है, मेरा लेपर्ड्स के बस साथ अभी ठीक है, सारे इतने कोई अच्छे नहीं लगते। but I agree with your fragile incident. We sent some brownies to Isha in Islamabad. Didn't reach in time, and when they reached, they were all gone. यस, एग्जैक्टली। So yeah, I understand that. But ठीक है, I think you over time जैसे आपने बताया 5 years के अंदर वैसे ही सिस्टम बहुत इवॉल्व हो गया है। एक तो वो भी हाँ जमाना जी, था जहाँ पे आप बिल्कुल ही कैश इन हैंड, बिल्कुल ही कैश इन हैंड कर रहे हो। From there to having a portal is already a much bigger step ahead. एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम वहां पे जाते हैं कि द फर्स्ट टाइम अब आपके लॉन्च होना शुरू होते हैं तो द लोगो, द ब्रांडिंग, क्या कलर होगा, हु वाज द माइंड बिहाइंड इट, द डिजाइन एंड द ब्रांडिंग पार्ट ऑफ इट? लोगोस मोस्टली मैं खुद ही डिजाइन करती हूँ बिकॉज आई थिंक आई वाज गुड एट इट, डिजाइनिंग और कंटेंट क्रिएशन वगैरह पे, और फिर ऑफ कोर्स के जो कलर्स डिसाइड करने हैं वो फिर म्यूचुअल डिस्कशन होती थी उसके ऊपर विद माय पार्टनर, तो वो फिर हम लोग मिलकर डिसाइड करते थे। और वर देयर मोस्टली जो मेनी? लोगोस हैं, हाँ हाँ, गो अहेड। पैकेजिंग है स्पेशली दिनारा के बॉक्सेस वगैरह की, वो फिर from a designer, we had help from them. एंड वर देयर लाइक जब आप फर्स्ट लोगो डिजाइन कर रहे थे, वाज इट डिफिकल्ट प्रोसेस कि यार बहुत कंफ्यूजिंग था कि यू आर लाइक द पर्सन हु वांट्स टू जस्ट गेट आउट इन द मार्केट एंड कीप improving as the time goes, and this is one of the first logos that you created and you're like, let's go? I wouldn't say it was difficult क्योंकि अब मुझे बचपन से ही ना एडिटर्स के साथ पंगे लेने का
का शौक था, तो आई ऑल्सो डिजाइन माई मदर्स लोगो बैक इन while I was in 8th grade I guess. So I've been doing it from a very long time, editing वगैरह और इस तरह की चीज़ें, and drawing on an tablet, iPad, ये वाली चीज़ें. So I think it wasn't difficult for me to use the apps because I already knew how you do it. वंडरफुल। अच्छा, तो जो दिनारा का इस वक्त हम पेज देखते हैं इंस्टाग्राम पे, इज इट एन एवोल्यूशन ऑफ द सेम पेजेस जो पहले बन रहे थे, कि ये बिल्कुल सेपरेट शुरू हुआ है और बाकी और सेपरेट है? It is an evolution. It is the same page. इट्स अमेजिंग। सो सेम पेज है, फिर ओवर टाइम उसको चेंज कर लिया इनटू अ डिफरेंट ब्रांडिंग। जी जी जी. जबर। Yes. तो अब मुझे बताओ कि व्हेन यू गाइस स्टार्टेड रीचिंग आउट, वही आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम बिकेम द फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन डिस्कवर यू, इज इट ट्रू कि कुछ और था? Yes. वाज इट द नहीं हम पॉपअप मार्केट्स एंड अदर प्लेसेस एज वेल? नहीं, इंस्टाग्राम से शुरू किया, अभी भी वी आर ओनली ऑन इंस्टाग्राम. फेसबुक पेज है लेकिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो वी ओनली डील ऑन इंस्टाग्राम. उसके बाद जब दिनारा जब नहीं, आई वेंट फर्स्ट ऑन हरियाली मार्केट. हरियाली मार्केट का आपको पता होगा. जी, फॉर एवरीबडी एल्स, हरियाली मार्केट आई थिंक लाहौर में बरकी रोड पे होती है, एंड जी टू जी जी. टू टाइम्स अ ईयर के ऐसा कोई नंबर नहीं नहीं, है? सर्दियों में हर महीने होती है. ओके, सो वंस अ इट मंथ इन स्टार्ट द विंटर। once a month. It's starting from this October again. व्हाट It's इज a women फॉर business. हाँ, वही मैं कहने लगा था, फॉर पीपल हु डोंट नो अबाउट इट, क्या है हरियाली? व्हाट इज हरियाली? It's a women-led business. The CEO is Maruf Beg, और उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू हेल्प वुमेन-लेड बिजनेसेस. जितने भी वहाँ पे लोग आते हैं स्मॉल बिजनेसेस को थोड़ा सा वो करने के लिए, उन्होंने अपफ्रंट पे लाने के लिए वहाँ पे सारे बिजनेसेस आते हैं. यू हैव टू बाय अ स्टॉल देयर. आपको वहाँ पे आई गेस द स्मॉलर स्टॉल इज फॉर 18,000 रुपीज, and it goes up to 30,000, depends on the table size you're buying. So you get great exposure there. A lot of people come there. बहुत ज़्यादा अच्छी audience है. बहुत I would suggest each and every small business out there to at least experience that once in a lifetime. Wow. Yeah, that's wonderful, how you describe it. When was your first month and year in Haryali? And let's go further back into your mindset then, कि जब स्टॉल ले लिया, कौन सा स्टॉल लिया एक तो, और फिर क्या चल रहा था कि मैं कितने ज्यादा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कितने काम, क्या मैंने एक्सपीरियंस क्रिएट करना है? was there anxiety around it? Take us to that prep, and then on the day finally, जब आप आ गए हो, क्या ऑडियंस थी? Who were the people and how many were there? Acha, the first time I bought the stall has a trauma attached to it. मैंने पेमेंट कर दी. आई लाइक आई सेड आई यूज्ड टू लिव इन सरगोदा और मैंने लाहौर आना था, ट्रेवल करना था. सो देयर वाज अ प्रोटेस्ट. इमरान खान ने रैली निकाल दी और सारे रास्ते बंद हो गए. मैंने पेमेंट की हुई थी. इट वाज आई ओनली हैड आई गेस वन मोल्ड ऑफ ईच थिंग आइटम, और मैंने एक एक मोल्ड से लगा के पूरे 3 महीने की तैयारी. मेरी एक एक मोल्ड से चीज़ें बनाई, एक एक आइटम की 10 चीज़ें बनी थी, और मैं नहीं आ पाई. बहुत मेहनत मेरी वेस्ट हुई, Yeah. मेरे पैसे भी What, वेस्ट हुए. yeah, सिंस exactly, दैट yeah, exactly at this moment when you realize कि आप नहीं आ पाए, वो वही दिन था कि एक दिन पहले पता चल गया कि नहीं आ पा रहे? एक दिन पहले ही पता चल गया था कि What, नहीं जा. for a young entrepreneur going out there in the public for the first time, how difficult it is? क्या जाता है अंदर, आई कितना बड़ा क्रैश क्राइड आता द होल नाइट. मेरी पूरी मेहनत जाया हो गई थी और मेरे पैसे भी ऑफ कोर्स लगे हुए थे. उस मोमेंट पे लगता भी था कि भाई खुद ही कमाए हुए हैं, तो इट्स अ बिग डील फॉर मी. और बस उस दिन से मुझे इमरान खान नहीं पसंद. है? So, गुस्सा, फिर गुस्सा कहीं पे चैनल चैनल हो गया, चलो यहाँ से बना के कहीं पे चैनल कर देते हैं। कितना डू यू रिमेम्बर, कुछ वापस रिफंड आया या उन्होंने कुछ अकोमोडेट किया? नहीं, सो की पॉलिसी है कि लास्ट डे पे रिफंड वगैरह नहीं आते, क्योंकि उन्होंने भी सेटअप वगैरह करना होता है. ऑफ दे हैव कोर्स। अ पॉलिसी कि आपको 50% रिफंड दे देंगे अगर आप 40 डेज पहले कैंसिल करते हैं इस तरह. तो आई डिडंट गेट अ पेनी बैक. लेकिन क्योंकि मेरी अपनी वो था
मसला मेरा अपना इशू था, क्योंकि आई हैड टू ट्रेवल फ्रॉम सरगोदा टू लाहौर, और कन्वीनियंस का भी मसला था क्योंकि सारी प्रोटेस्ट की वजह से रोड्स बंद थी। सो आई जस्ट लेट इट गो। लेट उसके इट गो। बाद हाँ, आई जस्ट लेट इट गो। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर मैं आई गई हरियाली पे। इट वाज 2023, ठीक और है। उस टाइम ब्रांड का नाम एफ्लोरेसेंस था। तो दैट ओके। वाज माय फर्स्ट टाइम। यस। एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? आप पहले आते हो, आप पूरा शौक से सेटअप लगाते हो, व्हाट वाज इट लाइक, व्हाट वाज गोइंग ऑन? It was definitely a very big thing for me. मुझे मैं I remember I took two of my friends, childhood friends with me. तो उनके साथ मैं इनको लेके गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम ऑल अलोन एंड देयर इज़ नो फैमिली विद मी। तो तुम लोग चलो मेरे साथ। एंड और फिर वो फर्स्ट टाइम वाज लाइक मैजिक फॉर मी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, इतने ज़्यादा लाहौर के लोगों से मिले, दे वर सो नाइस टू मी। उनको भी यही लग रहा था कि अब इतनी छोटी सी है और इसका ब्रांड है, और वो सब आगे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। आई रिमेंबर दैट देयर वाज दिस वन ओल्ड मैन वेरी एजेड, एंड ही केम टू माय स्टॉल, और उन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, एंड देन ही बॉट अ बबल कैंडल, पिंक बबल कैंडल फ्रॉम मी फॉर हिज वाइफ। सो दैट वाज वेरी क्यूट। बहुत अच्छे, यार, मुझे बहुत that एक्सपीरियंस। एंड सो यंग एंटरप्रेन्योर्स को डू रिकमेंड के एक तो जाएं बिकॉज एक्सपोजर इज गुड, स्पेशली अपनी अपनी भी कुछ एंजाइटीज अपनी अपने आप को भी वैलिडेट करवाने के लिए कि आई कैन डू इट एंड पीपल आउट देयर आर नॉट लाइक इवल्स हु आर जस्ट गो आउट देयर टू not support your business. In fact, people might end up, you might end finding that people are very encouraging. यस दे डू। और मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर जाएं। पीपल आर वेरी नाइस टू यू, स्पेशली एट हरियाली। आई हैव नेवर सीन एनीबडी बीइंग रूड और मीन टू यू, और दे सपोर्ट यू सो मच, एंड और आपको बहुत अच्छा लगता है वहां पे। इट्स अ होल एक्सपीरियंस। Yeah, that also reminds me that in some countries, for example, in Melbourne, where I spend a lot of time, Queen Victoria Market is actually a farmers market that is always on 7 days a week, and stalls keep changing. People keep coming for एक महीने के लिए वो अपना stall ले लेंगे and वो लगाते रहेंगे. So a lot of new businesses जिनके outlets नहीं होते, वो इसी तरह की pop-up markets में आते हैं. And I've seen that energy of that place is always vibrant because वहां पे जो लोग जा भी रहे हैं लेने, उनकी भी एनर्जी वो है कि यहाँ पे न्यू एंड फाउंडर्स आए होंगे. सो इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग तो जस्ट टू एक्सपीरियंस के यू हैव फेस दैट एनर्जी इन पाकिस्तान, नूरान, वेयर पीपल आर हैव द सिमिलर माइंडसेट कि यार यहाँ पे आए हैं लोग तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइकिल के अंदर आए हैं. So I think that that itself is a very very beautiful message to give. So after that one stall, आपको was it ब्रेक इवन लेवल गुड कि was good enough कि आपको बार बार वापस जाने का दिल किया कि यार यहाँ पे तो रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं बिजनेस को? इट वॉज वेरी गुड। आई रिमेम्बर कि मैंने अपने बाबा को कहा था कि आप देखना। अच्छा, मैं छोटी थी तो वही माइंड सेट था बच्चों वाला कि पैसे आ गए आईफोन लेना है। तो आई आई यूज्ड टू हैव वो सैमसंग जो बाबा ने लेके दिया था। तो उसके बाद जब मैं लाहौर हमारी हरियाली मार्केट हुई, आई आई स्ट्रेट वेंट टू हरियाली मार्केट से अगले दिन आई स्ट्रेट वेंट टू हफीज सेंटर, और वहां से मैंने फ़ोन लिया, एंड देन आई वेंट बैक टू सरगोदा। सो उन्हीं पैसों का। यार, सो दैट I this is ये छोटो वाला mindset नहीं है. This is a very research backed mindset where the moment you attach a certain price, a certain win with your success of anything, it could be कि यार बड़े एक certain numbers का goal हो या certain business का goal हो, और उसके फौरन बाद आप या एक ट्रिप ले लो या एक ऐसी चीज ले लो जो आपका बहुत डिजायर, मैकबुक है, आईपैड है, आईफोन है, वॉच है, सो ऑन एंड सो फॉर. यू विल ऑलवेज चेरिश दैट बिकॉज आपकी जो माइंड है वो ट्रेन हो जाता है उसको विद अ रिवॉर्ड एसोसिएट करने के लिए. एंड वो द नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस, द नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस, वो करते करते जब आप बहुत बड़े लेवल पे चले आते हो कि गाड़ी, घर या वट आप इन्हीं इसी तरह के उस विंस के साथ अटैच करने लग जाते हो कि यार ये इस पे मेहनत करते हैं, 3 महीने मेहनत करेंगे, 6 महीने करेंगे, साल करेंगे, लेकिन जब इस इवेंट अगर ये अच्छा गया या ये जो भी लॉन्च है ये अच्छा गया, देन विल रिवॉर्ड आवरसेल्फ. आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू डिड कि आपने अपने आप को फौरन जाके एक आईफोन लेके दिया. चलो अब दिस इज हाउ आई एम गोना रिमेंबर दैट विन. पॉपअप मार्केट्स का बताओ, फिर उसके बाद फर्दर हरियालीज या मैशन या कोई और पॉपअप मार्केट्स में गई फिर उसके बाद?
2023 हरियाली पे मैं onwards? बहुत बार गई हुई हूँ। फ्लोरेसेंस को भी हम लोग 3 टाइम्स आई गेस लेके गए थे, और उसके बाद दिनारा भी अभी रिसेंटली 2024 में हम दिनारा को भी लेके गए थे, और दिनारा का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी न्यू दिनारा, तो वो बार बार आके ओके। यही बताए थे मैंने आपसे चीज खरीदी हुई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और फिर आके बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं वहां पे स्टॉल पे लोग। तो वो सबसे जो बेस्ट फीलिंग वही होती है कि जब लोग आपके स्टॉल पे आके आपको अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने आपका आपका आई फॉलो यू, तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आई फॉलो यू एंड आई नो यू, दैट This इज is so, ग्रेट। and the kind of respect that you get now when people follow you because you're an entrepreneur versus the respect यस, that you get because people follow you because you're just another content creator and influencer is a very different, and only people who are entrepreneurs they understand that कि जब लोग आपसे आके बात करते हैं ना, they have a different vibe towards you because उनके जहन में जो respect element है, because they know it. Building a business is hard. It takes a lot of courage, it takes a lot of ups and downs, it takes a lot of overcoming your anxiety, and people kind of feel that energy when they see. So I'm pretty sure कि most of the people जिन्होंने वहाँ पे stall लगाए होते हैं, if the founders are themselves, वहाँ पे तो they यस, would experience the same thing कि it's a very encouraging atmosphere there. यस, Mesh एग्जैक्टली, मोस्टली mesh द थिंग्स me Go ahead. मेड, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, you go ahead, आप बताओ. नहीं, आई वाज सेइंग कि मोस्टली हरियाली के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं हैंडमेड होती हैं, सो हैंडमेड वाली चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है, को लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं ये आपने बनाया कैसे है, हाउ डिड यू uh, डू इट। Wonderful. Meshin है एक और, उस पे अभी जाने का मौका नहीं बना. नो, बना. मैशन के अंदर हम लोग हर साल लाहौर में अप्लाई करते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट अस। मैशन वालों, अगर आप देख रहे हो तो हमें कर लो एक्सेप्ट। मैं एक्चुअली पंचाता हूँ आपका मैसेज मैशन वालों पे हमारी डायरेक्ट एक्सेस है. मैं को बताता हूँ कि दिनारा. हम लोग हर साल अप्लाई करते हैं, इस साल भी हमने अप्लाई किया लेकिन दे डिडंट, मतलब आई गेस वो बहुत स्मॉल बिजनेसेस को करते हैं टारगेट, लेकिन अगेन आई हैव सीन बिग बिजनेसेस, बिग नहीं ब्रांड्स नहीं नहीं, गो हाँ देयर एज हाँ. वेल। स्मॉल तो नहीं, बड़े बड़े, हाँ, बहुत बहुत बड़े. शार्क टैंक पे एक आया हुआ है, 3 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू है, वो भी मैशन पे स्टॉल होता है, हर दफा होता है. बड़े कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे लाहौर में, उनके भी स्टॉल्स होते हैं. एंड यस, देयर आर वेरी वेरी स्मॉल बिजनेसेस एज वेल, उनके भी स्टॉल होते हैं. तो आई डोंट इवन नो, मैंने कभी खुद से नहीं देखा कि उनका क्राइटेरिया क्या है. बट we'll love to see Dinara there, and we'll do whatever यस, we can do to send the message. थैंक यू सो Let's अब मुझे बताओ कि 2023 में आई एम काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वर यू फीलिंग कि आज ये तो मेरा ब्रेकआउट ईयर बनता जा रहा है, अब मेरे पास थोड़ा सा एट स्केल ग्रोथ नजर आ रही है, थोड़ी सी वो एक बनाया एक बेचे से निकल के 50 बनाना या 100 बनाने वाला फेज हिट हो रहा है. वाज दैट द ईयर ऑफ मच। 2023 फॉर यू? यस, 2023, मुझे अभी तक याद है जब हम लोगों ने पहले शुरू किया था, वेल while I was doing it alone, so I didn't have a website, I didn't have Shopify, I was doing it all alone, handling every customer in my DMs, वहीं पे सारी डीलिंग होती थी, वहीं पे वो एड्रेस भेजते थे, if someone wants to do advance payment they would do it, और बस वहीं से मतलब सारा हैंडलिंग, इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी, क्योंकि मुझे याद है आई यूज्ड टू कीप अ रजिस्टर जहाँ पे सारे चीज़ें आई यूज्ड टू नोट इट डाउन एंड डू इट all by myself. Then in 2023, when Musa came, uh, uh, Musa was my class fellow from grade 1, so I know him for my whole life. So क्या नाम है, उसने फिर मुझे कहा कि you should make Shopify, तो उसी ने सारी वेब डेवलपिंग वगैरह, ही इज इनटू वेब डेवलपिंग एज वेल, तो दिनारा की जो वेबसाइट है वो उसी ने बनाई है। ओके, सो परफेक्ट. मैं ये स्क्रीन शेयर करके लोगों को दिखा भी देता हूँ सो दे कैन गो देयर, बट एज आई एम गोना शो, आप मुझे बताओ कि बिफोर द वेबसाइट एक सेल्स फनल कैसी लगती है लोगों को, कहाँ से पता चलता है दिनारा का? कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है, फिर उसे कमेंट करना होता है कि मैसेज करना होता है? व्हाट इज द सेल्स फनल? वो वेबसाइट के अलावा अगर आपको बैक देन आप अपनी जो पोस्ट थी बिजनेस अकाउंट पे करके, अपना जो अकाउंट है उसको बिजनेस अकाउंट बना के यू यूज टू बूस्ट योर पोस्ट, तो तब इंटरनेशनल टैक्सेस वगैरह भी नहीं थे, तो सो इट वाज काइंड ऑफ इजी टू डू दैट। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टैक्सेस आ गए हैं, अगर आप एप्पल से स्पेसिफिकली, अगर आप एप्पल से अपनी पोस्ट बूस्ट कर रहे हो, सो देयर इज अ सेपरेट एप्पल फीस फॉर इट,
सो दैट फिर हमने कहा कि uh, भाई ये तो काम खराब है। नहीं, ये तो आई वुड 100% रिकमेंड टू एवरीबडी कि एप्पल की डिवाइसेस से बूस्ट ना करें। उस पे 18% तक आई थिंक है एक्स्ट्रा फीस, या 20 है। यस, या वो लैपटॉप से करें या वो एंड्रॉयड से करें, वरना वो एड्स मैनेजर से जाके एक बहुत नेटिव एड लगा दें रादर देन आया बूस्टिंग। या यस। वो तो बहुत ज्यादा पैसे आए हैं। तो उसके बाद 2023 में फिर हमने इसकी शॉपिफाई की वेबसाइट वगैरह बनाई, और फिर मतलब जब सेल थोड़ी सी स्टेबल, मतलब मूसा यूज्ड टू हैंडल ऑल द कैंपेन्स, नाउ वी रन कैंपेन्स, एड्स हमने बूस्ट वगैरह हमने छोड़ दिया, नाउ देयर हाँ। आर प्रॉपर अब कैंपेन्स वगैरह। सो मूसा हैंडल्स देम ऑल एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट इट। हमने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एजेंसीज भी ट्राई की हुई हैं, एंड ट्रस्ट मी दे चार्ज वेरी हैवी प्राइसेस, बट दे डोंट डू मच। उनसे ज़्यादा बेहतर हम लोग खुद ही कर रहे हैं अब। तो फिर वो जब शॉपिफाई वगैरह सब कुछ हुआ, इट बिकेम वेरी इजी फॉर अस, सारा एड्रेसेस वगैरह सब कुछ उसी पे आता है, ऑटोमेटिक, नो डीलिंग, यू डोंट हैव टू डील एनी कस्टमर योरसेल्फ। वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने बस निकालना है, पैक करना है, एंड एवरीथिंग बिकेम ऑटोमेटेड। and before लाइफ if you have to क्लियर। if you have to put a number before the before the website, किस नंबर पे जाके 10 कस्टमर्स, 50 या 100 कस्टमर, 1000 कस्टमर्स पे ये लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि एक बंदा जिस के नॉट हैंडल द डीएम्स आफ्टर अ व्हाइल, कब जाके फील होता है कि यार ये तो ज्यादा हो गया, अब कुछ ऑटोमेशन चाहिए इसके पीछे। अच्छा, बैक व्हेन आई वाज डूइंग इट माय सेल्फ, सब कुछ मैं खुद ही करी थी, सो आई वाज़न्ट अर्निंग इवन अ 10% ऑफ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ विद शॉपिफाई एंड एवरीथिंग। सो बहुत मतलब वो तो हेक्टिक था ही, क्योंकि उस पॉइंट पे भी एक एक कस्टमर, फिर उनको पार्सल मिल रहे हैं, अगर कोई पार्सल में इशू है वो भी आपने ही डील करना है, छोटी छोटी हम्म। क्वारीज है आपकी सब कुछ आपने ही उनको रिप्लाई करना है। फ्रॉम उनको अगर डिलीवरी डेज पूछने हैं वो भी आप ही उनको बता रहे हो, हर चीज़ खुद ही बताने पड़ते हैं, वो वेरी हेक्टिक। राइट, राइट। सो वो जो टाइम जा रहा है इन मैनेजिंग द कस्टमर्स, वो जब 20 25 30 इंक्वायरीज एक साथ खुली हुई हैं, तो वो वहीं पे आपका बहुत ज्यादा टाइम इज जस्ट कस्टमर हैंडलिंग। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, वन थिंग दैट वी ऑल लुक एट द मोमेंट वी सी द वेबसाइट इज दिस ब्यूटीफुल फोटोग्राफी। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मैं हूँ, और क्या? मेरा बेस्ट what फ्रेंड एआई। what is your setup? Oh, my best friend AI. This, look at this. This is such a sweet thing. Tell us about this. What does it mean? Let's talk about this picture. Iced brew coffee candle. कॉफी कैंडल। इस पे नूरान कहाँ कहाँ है और नूरान विद एआई कहाँ कहाँ है? अच्छा, इसके अंदर अभी ये वाली जो पिक्चर है, इसके ये ओरिजिनल जो कैंडल है, आई डोंट थिंक सो आई हैव इट हियर। ये नूरान है, ओह ब्यूटीफुल। ठीक है। कॉफी कैंडल, और फिर ये जो पिक्चर है, क्योंकि ये मैंने जला जला चुकी हूँ और ये थोड़ी पुरानी हो गई है, तो ये ऐसी तो नहीं लग रही, क्योंकि ऊपर से जेलीज मेल्ट हो गई हैं। ये जो बिल्कुल। पिक्चर है, ये हमने उससे थोड़ी सी एडिटिंग करके और वो उससे की हुई है एआई से। लेकिन हाँ, जब जो जो चीज़ हम बनाते हैं वो ऐसी ही है। यार नहीं, वो तो आई टोटली गेट इट, बट आई थिंक दिस इज वेरी स्मार्ट दैट यू ये वाली पिक्चर फोटोग्राफी में भी हो सकती थी इन अ वे के कैमरा, लेकिन वो हाई यस, कॉस्ट यूज बहुत कॉस्ट, एग्जैक्टली। getting external people, but you figured out कि why not you can do it with AI. So, and how, what is the journey of that? कब figure out किया कि now I can, जैसे आपने मार्केटिंग का खुद figure out किया कि यार एजेंसीज को भी ट्राई किया बट हम खुद ही कर सकते हैं। सो इसमें ये जर्नी कब आई कि लेट मी जस्ट लर्न अ बिट ऑफ एआई, कि मैं कैसे कर अच्छा, सकती हूँ? पहले तो आई यूज्ड टू डू ईच एंड एवरीथिंग माय सेल्फ, एक एक चीज, एक एक वीडियो जो है पुरानी, इन 2023, एक एक वीडियो, एक एक पिक्चर जो है वो मैंने खुद ही अपने हाथ से ली हुई है। आई वुड से कि आई एम अ बिट गुड एट फोटोग्राफी वाली चीज़, सो फिर वो सब कुछ मैं ही हैंडल करती थी। लेकिन जैसे जैसे अब एक दो साल में चैट जीपीटी जितना इमर्ज हुआ है, सो उसको फिर हम लोगों ने फुली यूटिलाइज किया है। आई थिंक सो यही फायदा है जेनजी जनरेशन का, दे जस्ट फिगर आउट थिंग्स देमसेल्व्स। तो बस इसी तरह फिगर आउट किया चीज़ों को, पेड एप्स खरीदी, सो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट्स करके पिक्चर्स के ऊपर, और बस ये वाली चीज़ भी क्रैक कर ली।
Yeah, this is fabulous. Yeah, and the way you put it ना, यही फायदा है Gen Z generation का कि जो आप जिसको आप ऐसे by the way बात बताते हो ना. I was listening to one podcast. वहां पे वो कहते हैं there are two types of people who want to go to gym in the morning. For one it's like यार अब सुबह उठेंगे, अच्छा इतने बजे उठूं, इसके बाद कपड़े ऐसे इस्त्री करने पड़ेंगे, फिर इतने बजे जूते पहनूंगा, फिर इतने घंटे की इतने मिनट्स की ड्राइव है, अच्छा प्रोटीन शेक भी तो बनाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर एक और बंदा होगा, वो कहेगा अच्छा सुबह उठना है, ठीक है आधा घंटा पहले उठूंगा, जिम पहुंच जाऊंगा. वो बाकी चीजें सारे स्टेप्स उसके जेन में मिस हो जाएंगे. सो बेस्ड ऑन द पीपल, व्हेन वी लुक एट यू गाइस जेन जी टॉक अबाउट एआई, इट्स लाइक हाँ ऐसे पेड ऐप से एक दो लिया, थोड़ा फिगर आउट किया, चलो हो गया. आप किसी और पे जाओगे, अच्छा प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, राइट, ये चैट जीपीटी क्या होता है, अच्छा 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 इसके भी सीखना पड़ेगा. फिर अच्छा फोटोग्राफी, फिर बैकग्राउंड कैसे बनती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट्स लाइक टू मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व. So I love this part where you like के बस करना था figure out, too expensive है otherwise photography. But I think this soul कि आपकी हर चीज from your Instagram page to your website, everything just looks so beautifully artistic. So this having that mindset कि हर चीज को एक अच्छी क्वालिटी का ही रहना चाहिए, I think that comes first, and you are always figuring out the ways to make sure के you make that happen, whether with AI or pre-AI by putting in extra effort. But ये आप करते जा रहे हो साथ साथ. एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ आपका कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, आर यू making a lot of content on Instagram as well, which is beyond just photography of the products? And what is the mindset behind that? How do you think about your content? What do you try to make funny videos or product videos? क्या चलता है उसके अंदर? सिंपल होम डेकोर अभी पहले यही होता था कि एक प्रोडक्ट रखा, उसकी सिंपल सी वीडियो बनाई. रिसेंटली आई हैव ट्रैक द यूजीसी क्रिएटर्स कि अब मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया यूजीसी क्रिएटर्स का. यू सेंड देम पीआर पैकेजेस For ऑन for सिस्टम. for everybody here, UGC क्या होता है for a layman? What is a UGC? यूजीसी की फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूजर जनरेटेड कंटेंट, बट आप उस टाइम बता दो कि होता क्या है वो. basically different types of UGC, there are different types of UGC creators. हम लोग उनको ढूंढते हैं जो स्पेशली जेंजी कोडेड है, होम डेकोर में है. होम डेकोर की अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे यहाँ पेज देखें तो उसके ऊपर वीडियोस होंगी काफ़ी ढेर सारी. सो हम उनको, ये जो रिसेंट वाली बिल्कुल वीडियो है आप ये प्ले कर सकते हैं. दिस वन, नहीं नहीं, इससे अगली बार. दिस वन और दिस वन, अच्छा दिस वन. यस. सो दिस इज अ यूजीसी वीडियो. हम ठीक उनको अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं और ऑन अ बार्टर कोलैब उनसे बात हो जाती है हमारी, और उनको हम अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे और वो इन प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज में अपनी फीड के ऊपर इस तरह की वीडियोस पोस्ट कर देंगे. बिकॉज दे इनटू इट, द वीडियोस उनके एस्थेटिक्स इस तरह के हैं कि वो इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाते हैं. सो हमारा बस ये है कि हमने उनको एक पीआर पैकेज भेजना है दैट इज प्रेजेंटेबल अकॉर्डिंग टू देयर फीड, और अच्छे कलर्स में अच्छी चीज बनी हुई है हमने उनको भेजनी है, और वो कंटेंट दे प्रोवाइडिंग कंटेंट टू यू. देखो इससे भी कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपने ये मॉडल क्रैक किया है कि इट्स एक्चुअली अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज फॉर यूजीसी क्रिएटर्स इन पाकिस्तान, their motivation is that they keep having more and more content on their feed which is authentic, and at the yes, same time, instead of just getting cash, they are getting the items to their home yes, is getting beautiful, or their food is getting beautiful, or their clothes are getting beautiful, whatever the package that is coming. And as a businesswoman, your goal is to find the right UGC creators जिनको आपका प्रोडक्ट से फायदा भी हो, उनकी लाइफ में भी अच्छा हो, एंड एट द सेम टाइम उनकी वजह से more people get to know about you. So this becomes a very beautiful win-win curve for everybody. yes. वो हमारे दिनारा पर बहुत ज़्यादा यूजीसी क्रिएटर्स मतलब रीच आउट करते हैं इस तरह. एंड मैं एक एक चैट खुद ही खोल के उनके अकाउंट्स चेक करती हूँ, और हर महीने हमने यही किया हुआ है कि वी हैव टू सेंड एटलीस्ट 4 to 5 पीआर पैकेजेस टू यूजीसी क्रिएटर्स, ताकि वो इस तरह वीडियोस जनरेट होती रहें और फिर बैक एंड पे मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना हो कि मैंने खुद ही कंटेंट बनाना है. Right. सो And to make it दीज आर to make it छोटी छोटी चीज़. efficient for you, to make it efficient for you, आप उसके बाद let me restart my video a bit. Yeah.
सो उसके बाद आप इनको ट्रैक करती हो, इनके एनालिटिक्स कि किसका चला किसका नहीं चला, कि नहीं ऐसा नहीं है बस हो गया तो देखा जाएगा? हम करते हैं ट्रैक. यूजली वी डू रन एड्स ऑन दीज वीडियोस एज वेल. तो बेसिकली बैक एंड पे तो यही है कि हम लोग कोलैब इसी वजह से कर रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर एड्स डालें, उससे सेल आए. दैट इज द मेन वो गोल के सेल आए इन चीज़ों या से. सो वो भी जिससे जिसका एड सक्सेसफुल हो जाता है तो वो फिर हम लोग यूज कर लेते हैं, और जिसका नहीं है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. वी आर गेटिंग कंटेंट. it definitely is a win-win situation. Yes. I think this ये जो अच्छा, about this, how much have you cracked the target audience के आपकी, who are the actual the 80% of the purchaser, men, women, if women what age, if men what age, ये आपने कितना crack कर लिया? At Dinara, it's 90% women. 90% women, and what age bracket Yeah. they lie in, if there is any specificity there? 18 to 50, I guess, I would say. And these are Because the there these are are a lot of वुमेन जिन्होंने अपना मतलब होम डेकोर करना है सब कुछ. दे नॉट मतलब सिर्फ मेनली दे नॉट जस्ट गर्ल्स, मतलब मदर्स भी हैं. एंड देर आर ऑल्सो, मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि वी ऑल्सो हैव ग्रैंड मदर्स ऑर्डरिंग फ्रॉम अस कि मुझे आपकी चीज़ें wow. बहुत पसंद आई हैं, मैंने अपना कमरा डेकोरेट करना है. एंड दैट इज समथिंग आई वुड से आई एम प्राउड ऑफ. Yeah, I mean, that actually also makes me want to ask you, is there one or two overwhelming feedback जो सबसे मिला है, जहाँ पे एक one or two things जहाँ पे उनको दिनारा की कोई चीज ज्यादा ज्यादा सोलफुल लगती है या ज्यादा स्पेशल लगती है बाकियों से? इज देयर समथिंग जो आपका थोड़ा सा यूनिक सेलिंग पॉइंट बना, वेयर पीपल आर लाइक, या ये सिर्फ आपसे मिलता है? इज देयर एनी सच थिंग दैट कम्स टू माइंड? there was this one time, मतलब मुझे इस तरह की मतलब इन फेस टू फेस इंटरेक्शंस जो है वो सिर्फ मतलब एग्जीबिशंस पे हुए हैं. सो वी लॉन्च्ड अ कैंडल कॉल्ड नॉस्टैल्जिया 2000. तो वो नाम भी मैंने ही रखा था उस कैंडल का. ब्यूटीफुल द नेम. सेंट वाज ऑफ बेबी पाउडर. तो वो एक अंकल आए थे, आई गेस. आई वुडंट से अंकल, आई गेस ही वाज इन हिज मिड 30s. तो उन्होंने जब वो मतलब कैंडल को स्मेल किया और उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, और फिर उन्होंने कैंडल का जब नाम पढ़ा तो नॉस्टैल्जिया, उस कैंडल को मतलब जैसे ही आप स्मेल करो इट्स लाइक यू हैव गॉन बैक इन योर चाइल्डहुड. तो उन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसको कि नाम किसने रखा है. मैंने कहा मैंने रखा है. एंड ही अप्रिशिएटेड मी कि आपने मतलब बड़ा सोच के, अगर आप इसको सोचें तो इट्स लाइक ऑन अ वेरी डीप लेवल कि नॉस्टैल्जिया, इट स्मेल्स लाइक बेबी पाउडर, जब हम बाकी छोटे थे. सो वो एक छोटो No, अप्रिशिएशन जब मिलती है तो beautiful. दैट फील्स गुड. That is very soulful, by the way. Great name as well, Nostalgia 2000, and coming up with that scent. It's absolutely beautiful. अब मुझे बताओ, so which point in time and then you like कि अब यार मेरे से तो नहीं सिर्फ बनेंगी सारी products, and I have to start getting products made at scale थोड़ी ज्यादा. तो कैसे फिर इसके पीछे हायरिंग का माइंडसेट आया, कैसे हायर किया, कैसे सिस्टम बनाया, कहाँ पे बनती हैं, रॉ मटेरियल्स कैसे आते हैं इन 2025? What is the system like in 2025? अच्छा, ये माइंडसेट आया था जब मैंने अपनी डिग्री शुरू की थी लॉ की. लॉ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है. तो फर्स्ट ईयर में ही आए टोल्ड मूसा कि भाई ये तो नहीं होगा ऐसे. मतलब हम लोग दोनों मिलके, तब हम लोग अकेले अकेले कर रहे थे. वो अपने घर में, अब वो भी लॉ कर रहा था, तो मैं भी लॉ कर रही थी. दोनों सेम क्लास फेलोज, सेम डिग्री, वेरी डिमांडिंग डिग्री. और हम लोगों से बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा था. हम लोग सुबह काम शुरू करते थे दिनारा का, एंड वी यूज्ड टू कीप ऑन वर्किंग टिल मिडनाइट्स. अभी कभी कभी ऐसे होता था ऑर्डर पैक करते करते सुबह 6 बज जाते थे. तो वो फिर हमें लगा कि ये हम अकेले नहीं कर सकते, और इफ वी हैव टू एक्सपैंड दिनारा वी हैव टू हायर समबडी. बस आई रिमेम्बर कि इट वाज मूसा,
जिसने सबसे पहले हायर किया था एक लड़के को, और फिर वो सारा उसके साथ काम करवाता था। एंड देन आई गॉट मोटिवेटेड कि मुझे भी कोई चाहिए हेल्पर, एंड देन आई हायर्ड समबडी। और फिर ऐसे ऐसे टीम एक्सपैंड होती गई कि अब कैंडल्स के लिए हमें अलग बंदा चाहिए, हमें सीमेंट के लिए अलग चाहिए। दिनारा को जैसे जैसे स्केल किया, एक्सपैंड किया, वी हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। एंड I'm very proud to tell you that we are a team. Dinara is a team of, I guess, 7 to 8 members now. You guys are still in universities and you guys are even managing the payroll of 7 to 8 people. This is like so nice. What a full curve of entrepreneurial experience जो लाइफ के अंदर साथ साथ आप अपने लिए बनाते जा रहे हो आप Um, या गो अभी है भी सारों को मोटिवेशन मिलती है कि लगता है कि जिंदगी में कुछ कर लिया है छोटी उम्र में। बाकी सबको देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा फोमो भी होता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब उनके काम करने की उम्र आएगी तो फिर शायद हम एंजॉय कर रहे होंगे। वो देयर इज अ वेरी फेमस कोट hard choices, easier life, easier choices, hard life. The more एग्जैक्टली। harder the choices that you make, which seems very hard because everybody else, and generally speaking, hard choices at the time are usually those choices जो बाकी सबसे मुख्तलिफ होती हैं। एक टाइम पे लाइफ में सारे जो चीजें कर रहे होते हैं, चाहे सारे जॉब जब कर रहे होते हैं ना, तो जॉब करना कोई इतनी हार्ड चॉइस नहीं होती। वो लाइफ का एक नॉर्मल कर्व होता है। 50 लोग हैं, 50 के 50 ग्रेजुएट हुए हैं, सारे जॉब ढूंढेंगे, वो इजी लग रहा होता है। अगर आप अकेले कुछ अलग लाइफ में अपने फंसे हुए हो तब जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है बिकॉज यू आर लेफ्ट अलोन सो व्हाट यू गाइस आर डूइंग एट दिस एज इज एनीवेज अ हार्ड चॉइस बिकॉज द इजियर चॉइस इज टू फॉलो ऑन कि मिड टर्म के लिए क्या पढ़ना है, फाइनल के लिए क्या पढ़ना है, जीपीए कितना लेना है, अप्लाई कहाँ करना है, इंटर्नशिप कहाँ ढूंढनी है, करियर फेयर पे कहाँ पे जाना है। दैट्स लाइक दैट सीन्स बिकॉज एवरीबडी डज दैट, वो थोड़ा इजी हो जाता है। बट डूइंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग, इसके लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। जैसे आप बता रहे हो कि सुबह उठे कई दफा और रात 12-12 बजे तक लगे हुए हैं, कई दफा सुबह 6 बज जाते हैं। दैट इज व्हाट हार्ड चॉइसेस आर दैट मेक लाइफ इजियर आगे चल के। एग्जैक्टली। Nuran, so coming to the end, आप मुझे आप बताओ कि what are all the products, if you can count on your fingers, categories that people can purchase. So if people are the people who are watching and reading it in a case study, they can know कि क्या क्या वो ले सकते हैं। Maybe whatever you want to as your about your business, उसके models भी हैं, different या styles हैं, different purposes हैं, और कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, हमारी जो दिनारा की चीज़ें हैं वो दे कैन ओनली बाय फ्रॉम वेबसाइट dinara.pk, dinarapk.com, सॉरी। तो हमारी जो बेस्ट सेलिंग है इस टाइम पे, दैट इज आर आइस ब्रू कॉफी कैंडल, जो आपने जिसका हमने पिक्चर एनालिसिस किया। तो वो अभी फिलहाल हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जा रही है। यस दिस। और उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ डील्स एट दिनारा, वो हमारी बेस्ट सेलिंग है क्योंकि इंस्टेड ऑफ बाइंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स रिकमेंड के हम लोग पूरी पूरी डील ही ले लेते हैं। सो यस, दीज आर ऑल द डील्स। आपको ये कंप्लीट डील्स मिल जाएंगी। और आई थिंक सो दिस इज व्हाट मेक्स आवर ब्रांड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग मच डील्स देयर। और कस्टमर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, डील्स हमारी बहुत ज़्यादा सेल होती हैं और कस्टमर्स को अच्छी भी लगती हैं। द डील्स, ऑल द डील्स देयर आर ऑन द दिनारा। मतलब मैंने खुद ही डिज़ाइन करके बनाई हुई हैं कि ये अच्छी लगेगी, फिर एक एक चीज़ उठा के साथ रखी, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही। सो डील्स बहुत ज़्यादा हमारी सेल आउट होती हैं। उसके अलावा आई वुड द मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है दिनारा के अंदर, कैफ़े, क्रीम एंड कैफ़े। उसके अंदर हमारी सारी वो कैंडल्स हैं जो डिज़र्ट की तरह लगती हैं, डिज़र्ट कैंडल्स, टोस्ट ऑमलेट कैंडल्स। वो ऐसे लगता है कि रियल फूड है लेकिन देयर कैंडल्स। ओह वाओ, दैट और वो काफी लोगों को कॉन्सेप्ट मजे का लगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा लोगों को वो लगता है कि लाइक I have them in my room. This is the candle. Oh, okay, wait. Let me stop this share. Let's see. Let's focus on yours. आप दिखाना ज़्यादा दोबारा से। This is a candle. यार, this is insane. This is insane. Yes. Egg on a toast, the classic under toast candle. Look Yes. at this. Omelette candle.
Yeah, look at this. Yeah. So guys, right now you're looking at ice brew coffee candle, which of course we can already say it's amazing. Then we have a croissant candle, matcha latte candle. Look at this. This is amazing. This is so freaking good. Amazing work you're doing, Nuran. And for everybody, the Instagram page is Dinara, Dinara .pk, and follow her, buy from her, give, celebrate with her, tell her what you liked about her. Dinara, what do you wanna now coming to an end? इसका भी मुझे बताओ कि किधर नजर आ रहा है as let's say you have another couple of years, maybe 2 3 years still of your 2 years of your university degree going on as well. तो किस तरह कितना ज्यादा फोकस देने का दिल कर रहा है इन द दिनारा? इज दिस समथिंग दैट इज नाउ शेपिंग अप टू समथिंग दैट यू वांटेड टू डू एंड यू all in, you want to scale it up further? What is the plan for the next couple of years? अच्छा, डिग्री का तो मेरा आई गेस 1 ईयर ही रह गया, अब लास्ट ईयर है मेरा डिग्री का, ठीक है. सो दैट विल फिनिश. दिनारा इतना वो हो गया है क्लोज टू हार्ट, इट इज सो क्लोज टू माय हार्ट कि इसको कभी खत्म करने का दिल नहीं करेगा. आई वुड जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, अगर मुझे करना भी पड़ा फॉर होल माय लाइफ. तो क्योंकि मज़ा आता है अब कैंडल्स बनाने में. एक चीज़ मतलब माय फेवरेट थिंग टू डू इज मेक एक्सपेरिमेंट विद कैंडल्स. सो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है, इसको रिटेल में लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और इसको बहुत बिग स्केल पे इसकी स्केलिंग करनी है अभी इंशाल्लाह. इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे. और रही बात डिग्री की, तो वो वही है कि ज़्यादा दिनारा है और थोड़ी सी डिग्री. अगर दिनारा इसी तरह सक्सेसफुल रहा तो देख लेंगे, डिग्री भी कर लेंगे. Yeah, I love this, man. This is beautiful. And yeah, we're wishing you all the best as well. And all of you here at Kabil, if you guys are consuming it as a YouTube podcast or a Spotify podcast or as a case study on Kabil School or in your WhatsApp messages or email list, wherever you have gone, just go out there and see Dinara's packages, see how much their products that resonate with you guys. Follow the page ताकि कभी ना कभी आप अपने loved ones को gift कर सके. And all the soul that you have heard in this podcast coming from Nuran, who is putting her heart and soul, I'm very sure कि आपको अपने products पे feel भी होगी. If there anything that you'd like to ask Nuran, again, drop her a message on Instagram on her page and tell her that you saw the podcast, and see if you can get in touch with her. If there's anything that you want to take these products into your own cities, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, जहाँ पे भी, तो बीवी आप दिनारा को नूरान को मैसेज करें कि इफ यू वांट टू टेक सम ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड सेल इट इन योर पॉपअप मार्केट्स अंडर द ब्रांड ऑफ दिनारा, ताकि उनको फर्दर पाकिस्तान की रीच मिले, बिकॉज दैट्स द गोल एट द एंड ऑफ द डे. एट काबिल विल मेक श्योर दैट ऑल द पाकिस्तानी फाउंडर्स हु आर मेकिंग इन पाकिस्तान, सोर्सिंग इन पाकिस्तान, सेलिंग टू पाकिस्तान, वी सेलिब्रेट देम, वी ट्राई टू अपलिफ्ट देम. Nuran, thank you so much, and hope to see you around.